starting on all the social life. So I hope I am audible to everyone. शॉवर सब मतलब सबके पास मैं ऑडिबल भी हूँ. मैंने थोड़े आगे से स्टार्ट किया है एज बिकॉज टू चेक आउट द कनेक्टिविटी इश्यूज. इफ देयर इज सम इश्यूज आई विल स्टार्ट विद दैट एंड आई विल लाइक थोड़ा मैं ठीक करके देन आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक. So I will wait for few minutes, 1 to 2 minutes. And am I audible now? I think I will check on this also. Is my voice properly clear to everyone? Okay. So on my YouTube channel, I think people knows that what topic I'm going to discuss about today. It is about childhood obesity, which is a growing concern in our countries nowadays. बट माई फेसबुक फैमिली डज नॉट नो कौन सा टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. आज मैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करूँगी. चाइल्डहुड बच्चों में जो मोटापा आ जाता है उसके बारे में डिस्कस करूँगी. सो आई विल लुक हेयर एंड दैट समटाइम्स, सो ट्राई टू एडजस्ट विद दैट बिकॉज दोनों जगह लाइफ चल रहे हैं तो थोड़ा मुझे अपना विजन शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा. राइट, ओके. And my voice is audible. If it is clear, please give me a message that it is, or a thumbs up, so that I know that my voice is audible or am I clearly able to like visual to all of you. And जो भी मुझे देख रहे हैं 8 बजने के बाद I will start with the topic, right? Let me check. Background because for that some noises can be there, but rather than that there will be no noise at all. Right, and of course व्यूअर्स थोड़ा बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स रिप्लाई में मैं रिप्लाई नहीं कर सकूंगी. आई विल नॉट एबल टू टाइप बिकॉज आई एम टोटली अलोन माई सेल्फ मॉडरेटिंग एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ. आई विल जस्ट रिप्लाई. मुझे जैसे जैसे टॉपिक होगा मैं टॉपिक के बारे में बताऊंगी एंड उसके साथ मैं जस्ट हेलो हाई करूंगी. Hello, whoever is watching the live from Facebook, and hello to everyone whoever is watching the live from YouTube also. आप अगर फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम होती है आप यूट्यूब भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. आ जाती है उसके बारे में लाइव है. आई थिंक ये बहुत ही एक ग्रोइंग कंसर्न है फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर डिसेंट जनरेशन चाइल्ड. रिसेंट जनरेशन चाइल्ड के लिए ये बहुत ही लाइक कंसर्न है एंड उसके लिए आई विल जस्ट मूव ऑन टू दैट एंड आई विल शेयर माई स्क्रीन ऑफ कोर्स नाउ. फेसबुक में जो भी है दे विल नॉट बी एबल टू सी द स्क्रीन, बट मैं एक्सप्लेन करूँगी एक के बाद एक टॉपिक. आई होप दैट विल बी शोन, मतलब उस एक्सप्लेनेशन से आप समझ पाओगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहूँगी. मेरे जो लाइक टॉपिक्स है आज क्या क्या रहेगा, उस लाइक सेक्शंस क्या क्या रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. Is my like PPT showing to all of you or any problem is there? कुछ problems हो रही है क्या? Just let me know. I think it is not showing, right?
एग्जिट करके और एक बार स्टार्ट कर दूँ. Please let me know that everything is showing or not. Many of you are joining from Facebook. That is a very thanks to all of you for joining in. And I think there is some connectivity issues for which the presentation is not, you are not being able to see the presentation. अगर दिख रहा होता तो that would have been better, I think. कुछ भी नहीं दिख रहा है. Is it a black screen you are seeing? Yeah, it is. There is no light because I think the present I'm sharing the screen, but screen share करके भी कुछ दिख नहीं रहा है. Is it showing the? You are able to see the presentation? I think not. Which problems? अभी तक है. Have to check out once. Just hold on a minute. Hello, ma'am. From Renu, ma'am. How are you doing? I hope you are doing fine. कैसे हो? ये तो पूरा ब्लैक लग रहा है मुझे. प्रेजेंटेशन आज भी नहीं दिखेगा. ठीक है. Let's start with like explaining everything. Presentation नहीं दिख रहा है. I know, but let's start with the topic. I will not waste time. Next topic जब होगा, next live जब होगा, then I will definitely work on it. Presentation में ठीक रखने की कोशिश करूँगी. कनेक्टिविटी इश्यूज भी ठीक रखने की कोशिश करूँगी, so that there is no problem, right? So I will start on the live now. I will not waste much time. So first मैं जो बात करना चाह रही हूँ इस बार, that is childhood obesity, which is a growing concern. बच्चों में जो मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है अभी, एंड रिसेंट टाइम्स में ये और भी ज़्यादा हो रही है. बिकॉज क्या है ना, अभी बच्चों को लाइक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल गई है. दे गो टू स्कूल,
अभी डिजिटल में बहुत एक्सपोजर मिल गई है. दे सी टीवी, दे टेंड टू लाइक टेम्प्ट ऑन मेनी जंक फूड, या बहुत टेम्पटिंग चीज़ें वो देख लेते हैं अब डिजिटल वाइज. और उसकी वजह से वो लाइक जो भी होता है, लाइक स्नैक्स हो या जंक फूड हो, उनमें बहुत ही वो लाइक आकर्षित हो जाता है, एंड दे टेंड टू ईट एवरीथिंग. For that reason, childhood obesity is very it is a like very concerning thing, I would say. And बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, कैसे कैसे कौन से चीज़ से, एंड ऑल्सो कौन से एपिडेमिक कंडीशन अभी है, मतलब एक छोटे साइकिल में वो स्प्रेड किया हुआ है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, बट वो पैंडेमिक में ना बदल जाए, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ कोर्स. एंड रेनू मैम ने मैसेज किया अभी, अच्छी हो, आई एम वेरी फाइन मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम. आई होप आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो. कुछ भी हेल्प लगे एनी टाइम, you just let me know, I will be there. And YouTube fam, I think you will be seeing how I am talking to someone, but yes, वो Facebook में लाइव चल रहा है मेरे चैनल से ही. आप Facebook में भी फॉलो कर सकते हो, मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन में अबाउट में लिंक दिया गया है, एंड यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो, एंड यू विल बी एबल टू सी द लाइव. अगर आपको YouTube लाइव फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है. So first let me go forward with the obesity part. Obesity क्या होती है? वो it is a condition of abnormal or excessive fat accumulation in the adipose tissue to the extent that health may be impaired. ये दो लाइन जो है ना कि abnormal and excessive fat. Abnormal एक बॉडी में फैट रहना, मसल्स रहना is of course good. बट कौन सा फैट हेल्दी फैट होता है, कौन सा फैट एक्सेसिव फैट होता है, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड उसकी वजह से हमारे जो फैटी लेयर्स है वो जब बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू ओबेसिटी ऑफ कोर्स. एंड नॉट ओनली ओबेसिटी इज अ वेरी इमर्जिंग प्रॉब्लम. एक होता है कि नॉर्मल BMI जो होता है चाइल्डहुड ओबेसिटी में, नॉर्मली हम लोग का बॉडी में, सबके बॉडी में BMI नामक एक चीज होता है. BMI जो भी लाइक हेल्थ के लिए थोड़ा लाइक दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट देयर हेल्थ, वो BMI नाम सुना है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स. बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स इज समथिंग विच इज लाइक, आप मैं अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, वो है आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए. So if your height is something, some feet, इतना है, and आपका weight उतना है, and it is going well with that, एक BMI कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका BMI इतना रेंज में है, and वो नॉर्मल रेंज में आता है, that means you are on a correct, आपका हेल्दी फैट है. that means आप क्या हो रहे हो, आपका जो ओबेसिटी है, ओवरवेट, जहाँ पे चाइल्ड हैज एक्सेसिव बॉडी फैट चाइल्ड में एक्सेसिव होती है, एंड दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द हेल्थ एंड अफेक्ट्स द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड. एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ रिकॉग्नाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, चाइल्डहुड ओबेसिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है अभी के टाइम में. ज़्यादा पहले नहीं था, अभी जितना एक्सपोजर बढ़ गया है, जितना डिजिटल वाइज सब कुछ होने लगा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बढ़ गई है. एंड ओवर नाउ लाइक अभी कोविड में भी सब कोई घर पे थे, एंड कोई भी एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सपोजर नहीं था, और वेट गेन वाज द वेरी लाइक मेजर प्रॉब्लम इन द कोरोना पीरियड, आई विल से. सो ऑन नॉट ओनली बच्चों का वेट गेन, बट वेज टू आइडेंटिफाई द फैट बॉडी. आप अपना फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट हाउ मीन्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज या नॉर्मली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रिसर्चर्स क्या होता है ना कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी एक इम्पैक्ट पड़ता है. फर्स्ट, द चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इकोनॉमिक स्टेटस या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनको हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी होती है, बिकॉज वो हेल्दी फूड जो होता है उस हेल्दी फूड से वो लिमिटेड हो जाते हैं.
बिकॉज उनके पास उतना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दे डोंट अप्लाई टू दैट, एंड हेल्दी फूड्स वो नहीं ले पाते। जो भी घर पे होता है स्टेपल फूड, मेनली इंडिया स्टेपल फूड जो अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में होता है दैट इज राइस, कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें वो डिपेंड रहते हैं। जितना ज्यादा वो राइस लेते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज होता है, उससे ओबेसिटी भी इंक्रीज होता है। दैट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स। एंड I think everyone is able to see what I am speaking. कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है कुछ, let me know, right? I will just take a pause because I think there is a problem which I am facing. I am also not able to see my life and उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो let me take a pause. आई एम वेरी न्यू टू दिस लाइव सिस्टम। ये जो फेसबुक लाइव हो रही है एंड एवरीथिंग, आई एम वेरी न्यू टू दिस, सो पार्डन मी इफ आई मेक सम मिस्टेक्स और मैं कुछ मिस आउट कर जाऊँ, बट जितना मैं देख सक रही हूँ आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, राइट? ठीक है। आई थिंक कनेक्टिविटी इश्यूज इज देयर। Just give me a minute. I will definitely come back to the point I was there. Just give me a minute. Yeah. Yes. Now, what I was discussing about the measurements of the obesity. कैसे हम measure कर सकते हैं कि आपके फैट डिपोजिशंस लेयर आपके बॉडी में ज़्यादा है या नॉर्मल रेंज में है या लोअर रेंज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल BMI, व्हाट आई सेड कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। सेकेंड इज आपका BMI का जो नॉर्मल रेंज होता है हम लोग के BMI का, दैट इज हेल्दी वेट जो रेंज है दैट इज 18.5 to 24.9 ऑफ कोर्स। तो 18.5 to 24.9 जो BMI होता है दैट इज योर हेल्दी वेट रेंज। बट अगर आपका उससे ज्यादा है 24.9 से आपका बढ़ के 25 हो रहा है, 25 से 29.9 का अंदर BMI आ रहा है, दैट मीन्स आप ओवरवेट हो। एंड 30 के ऊपर जब आ जाता है 30 to 34 दैट मीन्स ओबीज ग्रेड 1, उसके बाद आता है 34 के बाद ओबीज ग्रेड। सो ऐसे करके ओबेसिटी का क्लास डिफाइन होता है। देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ ओबेसिटी, दैट इज 1 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। मैं उतना डिटेल्स में उतना पैथोजेनेसिस में नहीं जाऊंगी, जस्ट आई विल एक्सप्लेन कि कौन सा हेल्दी है एंड कौन सा हेल्दी मेजरमेंट्स नहीं है। 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर जो रेंज है वो आपका हेल्दी BMI है। एंड जो आपका लाइक 24.9 के बाद जो होता है दैट इज योर नॉन हेल्दी BMI और आई विल से ओवरवेट। एंड 30 के बाद आपका ओबीज ग्रेड स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो 30 के बाद यू स्टार्ट विद ओबीज ग्रेड। एंड ऑल्सो द मेन थिंग इज कैसे देर आर मेनी रीजन्स फॉर वाई लाइक ओबेसिटी, जिसमें डिपेंड करता है। फर्स्ट रीजन जो है that is poor dietary choices. So
4 डाइटरी चॉइसेस में क्या फर्स्ट में बताओ जो है, अगर बच्चों में ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो दे आर कंज्यूमिंग हाई कैलोरी फूड्स, या पेरेंट्स टेंड टू गिव लाइक इंटरेस्टिंग, दे सोचते हैं कि शॉर्टकट में कुछ कर दूँ, वो टिफिन लेके जाएंगे, या फिर फ्रेंड्स के माध्यम से बच्चे लाइक क्या होता है, फ्रेंड्स डिस्कस एंड एवरीथिंग, दे सी कि कोई और बच्चा ला रहा है बर्गर और मैं ला रही हूँ रोटी सब्जी, घर से मम्मी बना के दे रही है, दे टेंड टू टेम्प्ट होती है ज़्यादा स्नैक्स में, या आपके जो लाइक जंक फूड है उसमें ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता है। एंड फॉर दैट रीजन वो टेम्पटिंग के कारण दे स्टार्ट, मतलब उनका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो धीरे धीरे, बिकॉज वो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो रेंज में जो एज में होती है, दैट एज डिपेंड, दैट वो 12 to 19 के जो एज है ना, उस बीच में ज्यादातर वो वेट गेनिंग सिचुएशन आ जाती है, बिकॉज उस टाइम में हम लोग जो भी चीज सामने आंखों में जो अच्छी लगती है, दैट इज ओनली वी थिंक द बेस्ट थिंग, but that is not the reality. We don't know which one is healthy and which one is not. सिर्फ चाइल्डहुड ओबेसिटी में अवेयरनेस नहीं दे रही हूँ बच्चों को, बट ऑल्सो पेरेंट्स को, सो दैट दे ऑल्सो टेंड टू गिव अवेयरनेस टू द चाइल्ड कि ये चीज आप अभी अगर हेल्दी चीज फॉलो नहीं करोगे, बाद में जाकर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट रीजन आई विल डेफिनेटली गाइड parents as well as like children, so that they're able to know about all these things. As I said, I'm new to this. So one Krishna ji apne sticker भेजा है, thank you so much. And measurements of obesity. So बच्चों में हम लोग परसेंटाइल के हिसाब से ओबेसिटी मेजर करते हैं. किसी का भी परसेंटाइल अगर 85th परसेंटाइल के ऊपर हो, दैट इज मतलब डिक्लेयर्ड एज ओवरवेट चाइल्ड, एंड किसी का अगर 95th परसेंटाइल के ऊपर हो, दैट इज डिक्लेयर्ड एज ओबीस चाइल्ड. एंड चिल्ड्रन लेस देन 2 years, अगर जिनका भी 2 साल से कम एज है, उनका लेंथ के हिसाब से मेजर किया जाता है कितना लेंथ है. अदर वेज ऑल्सो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसका स्किन फोल्ड थिकनेस. हम लोग स्किन ऐसे फोल्ड जो थिकनेस होता है ना, ऐसे मेजर कर सकते हैं कि कितना आपका वेट है. एडल्ट्स में हम लोग वेस्ट हिप का रेशियो ले सकते हैं मेजरमेंट टेप से, उससे भी फैट परसेंटेज हम लोग देख सकते हैं. तो अपना वेट दो एंड यू सी आपका 5 to 25 4.9 के बीच में हेल्दी BMI रहता है, एंड 24 के 4.9 मतलब 25 के ऊपर आप ओवरवेट, एंड देन 30 के ऊपर ओबीस. सो वो आप अगर देख लो ना, आप खुद ही अवेयर हो जाओगे एंड बच्चों को भी अवेयर कर सकोगे. इफ मतलब बच्चे अगर खुद देख नहीं सकते, पेरेंट्स एज अ पेरेंट यू सी and you can aware the child that see your BMI is increasing, so you have to take care of all these things, so they can also get some knowledge on that. वो जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना उनका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, वो और भी ज्यादा फोकस रहेंगे कि और भी मैं ज्यादा नॉलेज इसके ऊपर गेन करूं, एंड देन दे विल मतलब वो खुद से अवेयर हो जाएंगे. सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डाइटरी चॉइसेस. जब बहुत पोर होता है, हम लोग ज़्यादा पैकेट फूड अभी बहुत मतलब दे रहे हैं बच्चों को. दैट इज नॉट एट ऑल गुड. जितना आप घर का खाना खाओगे, ऑफ कोर्स दैट इज हेल्दी. एंड घर का खाना मतलब ऐसा नहीं कि तले हुए पराठे या फिर कुछ फ्राइड चीज या पकोड़े, नॉट लाइक दैट. ऑफ कोर्स हेल्दी फूड once in a while, once in a month, in the festive occasions, of course you need. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप सब कुछ छोड़ दो, आप एकदम कुछ भी मत खाओ, सैलड्स खाओ, ऐसा नहीं होता है. पीपल लिव वंस, दे लिव फॉर गुड फूड. यू शुड हैव गुड फूड ऑफ कोर्स, बट द लिमिटेशंस शुड बी देयर, सो दैट आपके हेल्थ के ऊपर वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज या कोई कुछ भी हेल्थ इश्यूज आप फेस ना करो. Second is sedentary lifestyle. Now you will ask me that sedentary lifestyle कैसे कॉज होता है ओबेसिटी का, बिकॉज आप चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हो, एंड आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है, बिकॉज बच्चे तो हर दिन स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं. दे आर नॉट डूइंग जॉब, दैट दे आर सिटिंग ऑन वन चेयर एंड जस्ट डूइंग देयर जॉब.
तो उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है. बट सेडेंट्री लाइफस्टाइल अभी इन द डिकेड्स इट हैज इंक्रीज. हाउ? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम. अभी क्या है, अभी यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर सिटिंग ऑन अ डेस्क, यू आर डूइंग योर स्टडीज, यू आर डूइंग योर क्लासेस, you are coming back home, doing your homework, doing your coaching classes, you are sleeping out, you are not going to any physical activity. अब क्या आपका physical activity या कोई भी like entertainment exposure क्या हो रहा है? That is a TV और a mobile और a PC और a laptop. That is your like आपका entertainment activities हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. But for that thing what happens, video games ये सब में ज्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं बच्चे लोग, एंड दैट टेंड्स टू एनर्जी इम्बैलेंस. एनर्जी बहुत जल्दी डिके होती है एंड वेट गेन होती है फॉर दैट रीजन. सो ऑफकोर्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल बच्चों में भी होता है एंड दैट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द कॉज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी. थर्ड पॉइंट विच इज जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज अगर जेनेटिक हेरिडिटी में आपके फादर को, मदर को या रिलेटिव्स में किसी को भी ओबेसिटी है, कोई अगर हेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो आपके ऊपर वो आ सकता है. दैट इज वन लाइक वेरी लाइक आई विल से 10 to 20% ऑफ द थिंग्स हैपन फॉर द जेनेटिक पर्पस. एंड ऑल्सो फैमिली हैबिट्स, एनवायरमेंटल हैबिट्स. फैमिली हैबिट्स, घर पे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का खाना बनता है, या लाइक कोई मेजरमेंट्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स इनटेक करते हो घर में, तो दैट कैन बी ऑल्सो अ फैक्टर कि आपके सोशियो इकोनॉमिक जेनेटिकल फैक्टर्स क्या है फॉर दैट रीजन. सो दिस वर द कॉजेस. anyone who is watching from YouTube, just let me know that am I like view हो रही हो कि नहीं हो रही हो, because I think I'm not able. Okay. Coming to the long term consequences of childhood obesity. मैंने तो अभी causes बताया आपको कि क्या क्या causes है. Now long term consequences क्या है? Long term consequences ये है कि सिर्फ ओबेसिटी में आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट गेन के साथ साथ आपका हेल्थ रिस्क हो रहा है. हेल्थ रिस्क में क्या होता है? देयर कैन बी डायबिटीज. सिर्फ वेट गेन रिलेटेड नहीं होता है, वेट गेन के साथ साथ आपका हेल्थ रिस्क जुड़ा होता है. हेल्थ रिस्क जुड़ा मतलब आपका डायबिटीज हो सकता है, देयर कैन बी चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, देयर कैन बी चांसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, देयर कैन बी चांसेस ऑफ कैंसर. सो एडल्टहुड में ये सब हेल्थ रिस्क आ सकते हैं, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन डेवलप कर सकते हैं. बिकॉज वेट गेन सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है क्रॉनिक हेल्थ डिजीज को ग्रो करने के लिए. जब आप उसको ठीक नहीं करोगे, अल्टीमेटली आपको लाइक हेल्थ रिस्क मतलब होगा, एंड उसके वजह से बाद में जाकर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. सो पहले से ही मैं हमेशा बोलती हूँ, एट द स्टार्टिंग ऑफ योर एज, when you are growing, at the growth of your age, आप अपने वेट का, अपने हेल्थ का ध्यान रखें. that will be better, that will help you to like lower the rate of chronic diseases, because ultimately environment में बहुत pollution है. तो आप अगर environment में तो pollution है, उससे प्लस अगर आप खुद से like you are taking in all the like bad things, आप जानबूझ के ले रहे हो, तो that is a plus point you are getting, of course. And the second point is साइकोसोशल इम्पैक्ट. साइकोसोशल इम्पैक्ट क्या होता है? मेनली जो ओबीस बच्चे होते हैं, ओबीस चिल्ड्रन होते हैं, दे फेस बुलिंग, दे फेस लाइक सोशल मतलब सोसाइटी में तो बात चलती रहती कि
कितने मोटे हो गए हो, वेट इतना कैसे बढ़ गया है, दैट ट्रिगर्स योर साइकोलॉजिकल लाइक माइंड, एंड दैट है मतलब उस इशू के लिए आपको एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होती है. सो मेनली नॉट ओनली आई विल से कि खाने से आपका वेट बढ़ता है, खाने के साथ साथ भी what happens when you are like facing all this bullying, facing all this bad ill comments from your society people, from your friends, you get that anxiety attacks, panic attacks होने start हो जाते हैं, depression start हो जाता है, and that impacts your psychological like brain, and for that reason also वो weight gain में लाइक हेल्प करता है, वो वेट गेन करवाता है. वाई आई सेड बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रेस इज रिलेटेड टू वेट गेन. क्यों बोलते हैं हाउ इज स्ट्रेस रिलेटेड टू वेट गेन, क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेस में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन हो रही है इसलिए वेट बढ़ रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली जब स्ट्रेस बढ़ता है, आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इन द बॉडी, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल. सो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रीट होने लगता है ऑफकोर्स, एंड जब वो सक्रीट होने बहुत ज़्यादा लगता है, दैट टाइम्स ऑफकोर्स आपका वेट और भी गेन होता है. थर्ड पॉइंट ऑफ योर लॉन्ग टर्म consequences, that is economic burden. The long term consequences, that is economic like implications and increased healthcare cost for individual. जैसे जैसे वेट बढ़ता है, कोई भी क्रॉनिक अगर हेल्थ कंडीशन होती है, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के टाइम आपको लाइक आप फेस करते हो कि और मतलब आप कहीं पे भी जाओ हॉस्पिटल्स वगैरह में, इकोनॉमिकली इफ यू आर नॉट स्टेबल, आप सोचते हो कि क्या ही करना है, कुछ भी करना नहीं है, रहने देते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर हेल्थ. बिकॉज अब पहले आपने ध्यान नहीं रखा, बाद में जब आपका कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो रहा है, आप इकोनॉमिकली स्टेबल ना होने के कारण वो नहीं कर पा रहे हो, एंड देन दैट टाइम्स इट बिकम्स बैड फॉर योर हेल्थ, और आपके हेल्थ को वो इम्पैक्ट पड़ता है. कमिंग टू द हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ योर चाइल्डहुड ओबेसिटी. हेल्थ इम्प्लीकेशंस जैसे मैंने आपको बताया, टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर सकते हैं बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है, एंड बॉडी इंसुलिन ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती. इंसुलिन रेजिस्टेंस बन, ऐसा नहीं कि स्टॉप हो जाती है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन. एंड इससे क्या होता है, अर्ली एज से अगर हम लोग उसको ठीक ना रखें, अर्ली एज से हम लोग उसको मैनेज ना करें, तो टाइप 2 डायबिटीज डेवलपमेंट आ सकती है. कमिंग टू कार्डियोवास्कुलर रिस्क, कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी हो सकती है जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, हाइपरटेंशन लेमन लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, फिर आपका डिस्लिपिडेमिया, फैटी लिवर डिजीज, ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो कैन इंक्रीज. एक्सेसिव बॉडी फैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज कर देता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी ईटिंग ऑयली फूड एंड एवरीथिंग. फॉर दैट रीजन ऑल्सो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज होती है, एंड उससे आपका बाद में जाकर बहुत क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स आ सकती है. साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि एक लो सेल्फ एस्टीम बन जाती है. दैट मीन्स बॉडी इमेज इश्यूज के लिए हम लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने बॉडी इमेज इश्यूज के लिए. आप देखोगे ज़्यादातर टीनेज बच्चों में ये होती है, दे आर वेरी मच पॉजिटिव, दे आर वेरी मच लाइक कंसर्न्ड अबाउट देयर बॉडी इमेज इश्यूज. दे थिंक दैट अभी इतना तो ट्राई कर रहे हैं या फिर ये हो रहा है, फिर भी वो नहीं, मतलब वो डाइट करते हैं फिर भी वेट लॉस नहीं होता. बट डाइट वो कौन सा करते हैं, like in my I will explain, give you a very personal explanation, personal example in my career field, which एक बच्ची थी, I will not, मतलब नाम, I will not take the name and everything. एक बच्ची थी, she was one of my clients, and she was like 15-17 years old child. So उनको I took the counseling and everything, उनको मैंने डाइट भी दिया प्रॉपरली. एक हेल्दी डाइट था जिसमें प्रॉपर
लाइक मेजरमेंट्स ऑफ डिविजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर वीक था। किसी किसी वीक में उनका वेट बढ़ रहा था, किसी किसी वीक में उनका वेट इतने मतलब कम नहीं हो रहा था, स्टैग्नेंट था। तो शी वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाई डे। मैंने उनको पूछा कि आप क्या अभी हो रहा है, आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो शी सेड दैट यस, शी वाज फॉलोइंग द डाइट, बट उनका एग्जाम था इसलिए वो लेट नाइट पढ़ाई कर रही है एंड एवरीथिंग, फॉर दैट रीजन शी इज नॉट एबल टू फॉलो। मतलब वो फॉलो कर रही है फिर भी उनका रूटीन अभी डिस्टर्ब। तो आई अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट एज बिकॉज हर रूटीन इज, her body clock is not being adjusted to the routine she is going on right now. That's why the diet she is following is not getting affected. वो effect नहीं दे रहे बॉडी में जो देना चाहिए उसको, बिकॉज वो लेट नाइट पढ़ाई कर रही है एंड लेट नाइट पढ़ाई के कारण उनका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है। स्लीप डिस्टर्ब के कारण उनका प्रॉपर जो बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक है वो प्रॉपर तरीके से वो ठीक नहीं हो रहा है। फॉर दैट रीजन she is not been able to get that results, and suddenly she told me she wanted to lose like 1 week में 5 kgs, 1 month में 10 kgs, and for a like wedding purpose and everything, and I said that it is not healthy. तो उन्होंने मुझे खुद से डाइट उन्होंने बताया मुझे, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कीटो डाइट। सो मैंने उनको पूछा हाउ कम यू आर टेलिंग मी दैट आप ये डाइट करें? तो नहीं मैम, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कीटो डाइट करेंगे तब हम बहुत जल्दी वेट लॉस करेंगे। तो मैंने उनको सी आई कुड हैव गिवन हर दैट डाइट एज अ प्रोफेशनल, एज अ डाइटिशियन आई कुड हैव गिवन हर दैट डाइट। वो डाइट में दे सकती थी उनको कि आप वो ले लो, आप कर लो, आप फिर उनका हेल्थ भी डिटोराइट होता, उनको अगर कुछ कंडीशन होता वो फिर मुझे आके बोलते कि शी दिस हैपेंड। सो आई थॉट दैट व्हाई आई विल टेक दैट ब्लेम। मुझे बाद में जाकर वो ब्लेम क्यों लेना है कि मेरे वजह से ये हुआ है उनको, मेरे वजह से वो अगर होता भी नहीं है दैट इज ऑफ कोर्स वेरी गुड फॉर हर, बट अगर कुछ होता है देन व्हाई शुड आई टेक दैट ब्लेम? आई नो व्हाट कैन बी द consequences, I know what are the risks of the diet, I know that is not at all a healthy diet, that is totally a crap diet. So what I told her directly, see, as a dietitian I don't recommend this diet. I will give what I think is healthy for you, for your age, for your routine, and I will continue to give that, because आप अगर ये डाइट करोगे आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो she got adamant with that. उन्होंने कुछ बताया भी नहीं मुझे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट she stopped responding. So that was like end of it. I understood that वो, तो मैं क्या बता रही थी कि impact of the self esteem, उनको वो ego hurt हुआ because she was just 17 years old child. तो वो समझ ही नहीं पाए, वो सोच रही है कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, ये उनका साइकोलॉजी में चल रहा है। वो सोच नहीं पा रही है कि हेल्दी वे में मैं वेट अगर कम कर दूं बाद में जाकर मेरे हेल्थ भी ठीक रहेगा, आई विल बी फाइन विद दैट, आई विल बी हैप्पी विद दैट, एंड मुझे बाद में जाकर कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा। शी वांटेड समथिंग वेरी क्रैप डाइट, वेरी क्रैश डाइट, एंड वो अपने हेल्थ को रिस्क करने वाली थी। बट एज अ डाइटिशियन, as a health expert, as a health advisor, I will not recommend someone to do something like that, because मैं अगर वैसे recommendations दूँ तो बाद में जाकर they can blame me that why I gave that recommendation. So that is why I will say I know that the age between that बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आती है। पीपल मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बुलिंग, बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स लाफिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा कि कोई भी आंटी अगर बोल दी बच्चे आप मोटे हो जा रहे हो, ऐसा कुछ है, तो वो मेंटली बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट इफ यू आर गेटिंग, बिकॉज आपके पास अभी यूज इट वाइजली, आपके पास अभी डिजिटल मशीन्स है, आप अगर उसमें वीडियो गेम्स खेल सकते हो, why not use it in a better way?
सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ दैट. आप उसको बेटर वे में क्यों यूज नहीं कर रहे, सो दैट आप खुद से अवेयर हो कि आपके हेल्थ के लिए कौन सा चीज ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर हेल्थ. आप मेडिसिन में लाखों रुपए खर्च मतलब स्पेंड करने के लिए तैयार होंगे, बट आप मेडिसिन के आगे मतलब बिफोर टेकिंग मेडिसिन, इफ यू गेट अवेयर ऑफ व्हाई द थिंग इज हैपनिंग, एंड मैं उसको पहले से क्योर कर दूं, प्रिवेंशन में कर दूं उसका, सो दैट मुझे बाद में जाकर इतना लाइक लाखों रुपए का मेडिसिन ना खरीदना पड़े. व्हाई नॉट? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ट्राई टू प्रिवेंट इट एट द रूट बिफोर इट मतलब वो ग्रो हो, वो ज्यादा बड़ा हो जाए. ट्राई टू प्रिवेंट इट एट द रूट. सो व्हाई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कभी हेल्दी फूड मतलब उनका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, उनका एडवांटेजेस भी होता है, उनका डिसएडवांटेजेस भी होता है. फर्स्ट एडवांटेजेस, वो बहुत एक्सेस देता है आपको, डिजिटल वाइज एक्सेस देता है आपके हेल्थ के बारे में जानने के लिए, आपको हेल्दी फूड अवेलेबिलिटी की जानने के लिए. अभी तो बहुत साइट से बहुत डाइटिशियंस, बहुत हेल्थ एक्सपर्ट, दे हैव यूट्यूब चैनल. Just subscribe on the YouTube channel. Just see their videos. Just see what they tell about your health, about everything, so that आप एक आइडिया ले पाओ. आप सिर्फ लाइफ मतलब वीडियो गेम्स आप खेलो, उसके साथ अपने हेल्थ के बारे में भी आप थोड़ा अवेयर हो. आई एम नॉट जस्ट टेलिंग अबाउट टू द पेरेंट्स, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग टू द चिल्ड्रन, बट for a small for parents also it is very much important to know about their child health, so that they can make that awareness. आप घर से ही उसको अवेयरनेस दे सको, so that उसको अलग से कुछ वो क्यूरियोसिटी उसके मन में जागे एंड वो खुद से वो अवेयर होने की ट्राई करे. Coming to the like prevention and intervention strategies. First prevention, of course, जो रहेगा that is role of nutrition in preventing obesity. Role of nutrition क्या होती है? Balanced diet very much important. Balanced diet में सब कुछ रहना पड़ेगा, fruits रहना पड़ेगा, vegetables रहना पड़ेगा, whole grains होगा, lean proteins होगा, to maintain a healthy weight and prevent obesity. And excessive calorie intake हम लोग को कम करना. आप अगर सोच रहे हो वीक में 7 दिन है, वीक में 7 दिन में आपको एक संडे आपको चाहिए, संडे को चाहिए आपको एक बर्गर खाना होगा. यू वांट अ बर्गर ऑन संडे. ट्राई टू मेंटेन इट ऑन 6 days. आप 6 days मेंटेन करो. आप 6 days हेल्दी बैलेंस डाइट फूड लो. आप गूगल में जाओ, फूड प्लेट आप लिखो गूगल में, फूड पिरामिड आप लिखो, फूड पिरामिड में आपको एक पिरामिड मिलेगा जहाँ पे आपको दिखाएगा कितना आप प्रोटीन ले सकते हो, कितना आप कार्ब्स ले सकते हो, कितना आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ डे ले सकते हो. आप उस क्वांटिटी में अपना प्लेट को सजाओ एंड हैव दैट फॉर द 6 days. एंड ऑन द 7th day आप एज अ रिवॉर्ड टू योरसेल्फ यू हैव अ बर्गर. यू सी, you feel happy from inside, your health is also happy.
टाइम आउट हैज़ बीन देयर एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास. सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट the concerning effects. So balanced diet is very much important. Balanced diet आप जितना रखोगे and जितना होगा that is good for your health also. Healthy eating habits from a young age so that आप अपने children को, अपने child को aware कर सको about the food, about the risk of obesity and education. Education आप choices दो healthy food में. आप ऐसा दो कि आप एक लाइक वेजिटेबल सैंडविच, समथिंग रिलेटेड टू लाइक protein shake, so they can choose from that. So if they have a healthy food choice, they will be aware. Activity is very much important. Physical activity जितना हो सके engage कीजिए अपने children को, जो नॉर्मली हेल्दी वेट में भी प्रमोट करता है, उसके साथ आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी कम करता है, मसल एंड बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज को भी कम करता है. सो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए. सो दैट प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल. एंड ऑफ कोर्स आई विल से कि अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन के साथ बैठना है. They should discuss about everything, not only about their career opportunities या careeristic के बारे में आप सिर्फ अपने बच्चे के साथ डिस्कस करो, but not. It should be a holistic approach. It should be a overall discussions with your children about their health, about whatever they are facing, whatever psychologically they are trying to speak out, but they are not able to speak out. आपको बात करना पड़ेगा. As a parent, you should guide your child. सो दैट आप अगर अपने चाइल्ड को गाइड करोगे, उससे पहले आप खुद अवेयर होना पड़ेगा आपको. सो ये वीडियो, ये लाइव आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है एज अ मदर एंड फादर, कि आप खुद ही अवेयर हो कि कौन सा चीज़ आपके बच्चे के लिए ठीक है. देन यू कैन गिव योर चाइल्ड दैट डायरेक्टिव. कि आप ऐसा नहीं कि आप कुछ साइंटिफिक वे में आप बताओ. आप नॉर्मली डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज़ें हैं. आपको क्या लगता है कि आप बाद में जाकर आपको ये अगर हेल्थ कंडीशन हो, दैट विल बी बेटर. और आप अगर यंग एज से अपने हेल्थ को ठीक रखो, ऑफकोर्स आपको बर्गर मिलेगा, पिज्ज़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट एक लिमिटेशंस हम लोग क्लियर करेंगे. हम भी लिमिट में लेंगे, आप भी लिमिट में लो, एंड दैट कैन गो एज. सो दैट इज हाउ यू कैन अवेयर योर चिल्ड्रन. एंड आई विल जस्ट एंड ऑन दैट लाइफ so that before doing any changes and everything, I will end on the live. Thank you so much everyone जो भी आज viewers थे. I will come back with a new topic and I hope you liked it. Good night everyone.